صدیوں سال پرانی بات ہے، کسی دیس میں شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نامی شخص اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ سادگی بھری زندگی گزار رہا تھا۔ سلیم ایک سادہ دیہاتی شخص تھا جس کی زندگی کھیتوں اور گھر کے درمیان گردش کرتی رہی۔ زمینداری اس کا واحد ذریعہ معاش تھا اور اسی محنت کے سہارے وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور 4 بچوں کی کفالت کرتا رہا۔ اگر آپ کا دل نرم ہے تو یہ کہانی آپ کو ضرور رلا دے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خاموش پیغام ہے جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فرق زندگی کا سب سے دردناک سبق سکھا دیتا ہے، مگر پھر افسوس کرنے سے وقت پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ لہٰذا اس کہانی میں خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ ایسی غلطیوں کو درست کریں جو آنے والے وقت میں آپ کی زندگی کو اجیرن بنا سکتی ہیں۔ ہمارے کہانیاں سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور خود کو بڑی آزمائش سے بچائیں۔ تو پیارے دوستو، سلیم دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں بیٹے عمران کی مسکراہٹ پر پڑتی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ ہاجرہ بھی بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے سے زیادہ محبت کرتی اور عمران پر ہی ساری توجہ دیتی، جبکہ بیٹیاں سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی مگر ماں باپ کی ایک پیار بھری نظر کے لیے ترستی رہتی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران 23 برس کا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا جس کا سلیم اور ہاجرہ نے برسوں انتظار کیا تھا، اپنے بیٹے کے گھر بسانے کا وقت۔ دونوں خوش تھے، دل میں دعائیں لیے بیٹھے تھے کہ بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ گاؤں بھر میں چہل پہل تھی اور تینوں بہنیں بھی بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، لیکن ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مکمل نہیں تھی۔ ان بہنوں کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ کھول کر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بظاہر وہ تینوں سلیم کی بیٹیاں تھیں، مگر گھر میں ان کا مقام وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ کی محبت کے بغیر بیٹیوں کی خوشی صرف چہرے تک محدود تھی۔ سلیم اور ہاجرہ کی دنیا کا مرکز ہمیشہ ان کا بیٹا رہا، جیسے وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا اور گھر کا اصل چراغ ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہی خواب تھے جو ہر دیہاتی باپ دیکھتا ہے کہ وہ بڑا ہو، خاندان کا نام روشن کرے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہاجرہ بھی اپنے اکلوتی بیٹے پر جان نچھاور کرتی، اس کی پسند اور ضروریات کو سب سے پہلے رکھتی، مگر اس ساری توجہ کے بیچ بیٹیاں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ وہ بھی محبت کی طلبگار تھیں، وہ بھی چاہتی تھیں کہ والد ان سے شہزادی جیسا سلوک کرے، مگر ایسا کبھی ہوا نہیں۔ گھر میں عمران کی شادی کی بات چل رہی تھی، اچانک ایک اور خبر آ گئی۔ مریم، جو کہ سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، شہر سے ان کے لیے رشتہ آیا۔ سلیم اور ہاجرہ نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیوں کا بوجھ جلد سے جلد اتار دینا ہی بہتر تھا۔ اگر رشتہ واقعی مناسب ہوتا اور مریم بلا وجہ انکار کرتی، تب والد کو اختیار تھا کہ وہ اسے سمجھاتے، مگر یہاں تو اسے جانے کی زحمت بھی نہ کی گئی۔ مریم خاموش رہی، وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں، بس ایک ذمہ داری تھی جسے والدین نے جلد از جلد اتار پھینکنا تھا۔ مریم نے دل میں ایک بے نام سا درد لیے، آنکھوں میں وہ سوال لیے جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے والدین کے فیصلے کو قبول کر لیا، جیسے کوئی لاوارث جس کی پسند ناپسند کا کوئی موڑ نہ ہو۔ اور یوں بھائی کی شادی سے پہلے ہی مریم رخصت کر دی گئی، ایک ایسے گھر جہاں شاید حالات اور تلخی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر کسی نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ کیا چاہتی ہے یا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم کی شادی کے بعد اللہ ان کا نگہبان تھا اور اس کا شوہر بھی ایک بہت اچھا انسان نکلا۔ وہ مریم سے بے حد محبت کرتا اور اس کی ہر بات کا خیال رکھتا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور کچھ سالوں بعد سلیم اور ہاجرہ کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ گھر خوشیوں سے گونج اٹھا، ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا۔ سلیم اور ہاجرہ مطمئن تھے کہ اب ان کا اکلوتا بیٹا اپنے گھر کا ہو گیا اور بڑھاپے میں انہیں ایک سہارا مل گیا۔ بہنوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، وہ بھائی کی نئی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کے والدین کو بھی سکون ملے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد مریم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سلیم کی باقی 2 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں، اور یوں سلیم اور ہاجرہ کے لیے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔
अब उनकी तमाम उम्मीदें और सहारा सिर्फ बेटे और बहू पर था। वो यही सोचते थे कि अब बुढ़ापे में उनका बेटा उनका साथ देगा, उन्हें संभालेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे इमरान को नाज और नियाज से पाला पोसा था और बेहद मोहब्बत दी थी। अब वालिदैन भी अपने बेटे से इसी मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ बेटे के रवैये में सख्ती आती गई और वो पहले जैसे शफकत भरे लम्हात की याद बनते चले गए। कुछ अरसा बाद माँ बाप के लिए इमरान का लहजा तल्ख होता गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब वो उनसे बदतमीजी करने लगा जैसे वो इसके कुछ भी नहीं लगते। हाजिरा के लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम ना था और सलीम चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रख कर वो बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। वक्त के साथ सलीम मजीद कमजोर होने लगा और बुढ़ापे ने इसे घेर लिया। अब वो चाहता था कि इसका बेटा जमींदारी संभाले, खेतों में काम करे, ताकि वो खुद कुछ आराम कर सके। मगर आराम पसंद बेटा सख्त मेहनत का आदी ना था। जब सलीम ने इसे मजबूर किया तो वो आग बबूला हो गया और उल्टा वालिद से बदजुबानी करने लगा। बाप की ज्यादा जोर देने पर एक दिन हद ही हो गई जब इमरान गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बाप पर हाथ उठा दिया। इसके बाद वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए कोई मानी ही ना रखता हो। अब सलीम और हाजिरा बिल्कुल अकेले रह गए। बेटियां दूर ब्याही जा चुकी थीं और बेटा भी उन्हें तन्हा छोड़ गया था। घर की वीरानी अब दिल पर बोझ बनने लगी थी। कभी खाना बनता, कभी नहीं। हाजिरा बुढ़ापे के सबब किसी काम के काबिल ना रही थी और सलीम भी दिन बदन कमजोर हो रहा था। जिस बेटे को अपना सहारा समझकर सब कुछ दिया था, वही आज उन्हें बेसहारा छोड़ चुका था। एक ऐसा घर जहां कभी खुशियों ने डेरे डाले थे, अब वहां माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांग रहे थे। बुढ़ापे में उन्हें नवासे पोतों की हंसी खुशी भरी आवाजें सुनने की तमन्ना थी, मगर अब वो अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन बेटे ने अब भी सुकून का सांस ना लिया। अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची के बाइस वो कंगाल हो चुका था और जब कोई रास्ता ना बचा तो माँ बाप की जायदाद बेचना शुरू कर दी। सलीम और हाजिरा बेबसी से ये सब देखते रहे, मगर उनके पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा ना था। वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनकी आवाज की कोई अहमियत नहीं रही थी। वक्त का जालिम पहिया घूमता रहा और वो दिन भी आ गया जब सलीम के पास सिर्फ एक छोटा सा घर और एक आखिरी खेत बाकी रह गया, जहां इसने अपने लिए कुछ गंदम बोई थी। वही सलीम जिसके खेतों का कोई शुमार ना था, जिसके नीचे सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जो शान और शौकत में जिंदगी बसर करता था, आज एक अशरफी के लिए तरस रहा था। वही बेटा जिसे इसने अपनी दौलत और मोहब्बत में पलकों पर बिठाया था, आज इसे सड़क पर ले आया था। कुछ अरसा इस सख्ती में गुजरने के बाद सलीम की बड़ी बेटी मरियम घर आई वालिदैन की खैरियत पूछने। मरियम जब वालिदैन के घर पहुंची तो मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर मुकम्मल सुनसान था, दीवारों पर पुरानी नमी के निशान थे, बावर्ची खाने की हालत अबतर हो चुकी थी और सहन में खामोशी का राज था। माँ बाप चारपाई पर निढाल पड़े थे। ये देखकर मरियम का दिल टूट गया। वो तड़प कर आगे बढ़ी, माँ बाप के पास जा बैठी और उन्हें तसल्ली देने लगी। इसकी आंखों में आंसू तीर रहे थे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर इसने अपने शौहर की तरफ देखा, आंसू पोंछते हुए मजबूत लहजे में बोली, मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहाँ रहूंगी। इसका शौहर जो एक नेक दिल और समझदार इंसान था, मुस्कुराया और नरमी से बोला, अगर तुम अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम उन्हें यूं अकेले नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मरियम की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। इसने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने वालिदैन की तरफ देखा, जो हैरत और नदामत के साथ अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब वालिद की जिंदगी दोबारा बेहतरी की तरफ जाने लगी। घर में खुशियां वापस आईं, क्योंकि मरियम के दो मासूम बच्चे नाना नानी के साथ खेलते हंसते और उनकी तन्हाई को खत्म कर देते। उनकी मासूम हंसी सलीम और हाजिरा के दिलों को सुकून बख्श देती, जैसे बरसों की उदासी के बाद बाहर वापस आई हो। मरियम और उसका शौहर वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखने लगे। खाने पीने का इंतजाम, दवाएं और दीगर जरूरियात सब कुछ दामाद खुद ले आता। यहाँ तक कि खेतों का काम भी संभाल लिया। दामाद ने गंदुम काट कर खलियान भर दिए और खेतों के काम में गहरी दिलचस्पी लेने लगा।
सलीम के दिल को एक नई तसल्ली मिली कि शायद वक्त ने जो कुछ छीना था वो किसी न किसी सूरत में वापस मिल रहा है। लेकिन एक दिन तकदीर ने फिर आजमाइश का दरवाजा खटखटाया। एक दिन दामाद के साथ सलीम खेतों में घूमने गया, मगर बुढ़ापे और कमजोरी के बाइस बैलों से गिर गया। इसके जिस्म पर गहरे जख्म आए और वो दर्द सहने लगा। दामाद ने फौरन आगे बढ़कर सलीम को उठाया और हकीम के पास ले गया, मगर जख्म इतनी शदीद थे कि सलीम बमुश्किल हिलने के काबिल था। जब मरियम ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। सलीम की आंखों में नमी आ गई। वो अपनी बेटी को अपने लिए तड़पते हुए देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कांपते हाथों से इसे सीने से लगाकर भराई हुई आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हें बेटी जैसा प्यार ना दिया, मगर तुमने आज बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती है। मरियम ने बहुत दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, अब ऐसी बातें ना करें। हमारे लिए तो अब जन्नत के दरवाजे जैसे हैं। सलीम का घर जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर खुशियों और मोहब्बत की गर्मी से भर चुका था। मरियम की देखा देखी इसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खबर लेने आने लगी। नवासे पोते नाना नानी के अर्द गिर्द खेलते, उनके लिए हंसी खुशी का समा बनते और सारा दिन उनके साथ गुजारते। सलीम कभी उन बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता कि शायद अल्लाह ने इससे बेटे की मोहब्बत छीन कर बेटियों की मोहब्बत से नवाज दिया है। वो जो हमेशा बेटे के सहारे की आस लगाए बैठे थे, आज इसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वो बेटियां हैं जिन्हें वो कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसा बाद सलीम दुनिया से रुखसत हो गया और उसके पीछे हाजिरा भी ना ठहर सकी, मगर उन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बने जिन्हें कभी कमतर समझा गया था। वो वालिद जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, उन्हीं बेटियों के कंधों पर सर रखकर इस दुनिया से चले गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए कई कीमती असबाक हैं जो दरअसल इसका बुनियादी मकसद है। माँ बाप होने के नाते कभी भी अपने बच्चों में फर्क न करें, क्योंकि वालिदैन की मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है। बेटा हो या बेटी, दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर हुकूक दिए हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। दूसरी अहम बात यह है कि बच्चों को मोहब्बत जरूर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ प्यार का अंदाज बदलना भी जरूरी है, वरना लाड में बिगाड़े गए बच्चे जैसे इमरान न सिर्फ खुद नाकाम होते, बल्कि अपने वालिदैन के भी किसी काम नहीं आते। मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन तरबियत भी जरूरी है, क्योंकि एक बेतरबियत इंसान जानवर से भी बदतर बन सकता है। बेटे होने के नाते वालिदैन की इज्जत और एहतराम हर हाल में लाजिम है। अगर वालिदैन किसी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करें या ना करें, ये बेटे पर अल्लाह ने लाजिम फरमाया है कि बच्चे वालिदैन के ताबे हों। वालिदैन की दुआओं में अपनी कामयाबी तलाश करो, उनके साए को हमेशा अपनी खुशकिस्मती समझो, ना कि एक मामूली चीज। 20 साल के बाद खुद को बच्चा न समझो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो। वालिदैन का सहारा हमेशा नहीं रहता, कामयाबी के लिए खुद मेहनत करना जरूरी है। बेटियां भी याद रखें कि वालिदा शौहर की बेरुखी और जुल्म पर सब्र करने से अल्लाह वो बुलंद दर्जा अता करता है जो बाज लोगों को सख्त मेहनत से भी नहीं मिलता। अफसोस की बात है कि बाज लोग बेटों को फौकियत देते हैं और बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस मुबारका में बेटी को रहमत कहा गया है और उसका मतलब यह है कि बेटी वालिदैन के लिए दुनिया में भी रहमत का जरिया बनती है, और अगर यहाँ नहीं तो आखिरत में जरूर बनेगी, मगर उसकी अच्छी तरबियत शर्त है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी इस्लाह हो जाए। आपके ताउन का शुक्रिया।